So, hello everyone. Today I'm going to discuss one of the most important topic of the data structure, and this topic is known as hashing. So, basically, what is hashing? It is a technique for storing and retrieving the data from the database very quickly, and in fact, in order of one time, but it is not very practical. So, the main idea is it converts a key into an index of an array using a hash function. So basically, because of this, searching, insertion, and any kind of deletion, such as like that deletion of the data, can be performed in order of one time. So all kinds of data processing can be processed in order of one time, but it is not very practical. So how I'll be proved later on. So basically, what is the main core idea of the question, simple question I'm asking you: why hashing are used into data structure? So main the core idea why hashing comes into the existence, what is the logic behind to come into the existence, the main solution of this. Like that, I have an array, suppose 10, 20, 30, 40, and 50. There are 5 elements stored into the array, and I want to search this element. I want to simply search this element. So in that case, I will traverse from index 1. Suppose my suppose this is an index 0, 1, 2, 3, and 4. So before going to search this element, the third index element, first of all I will traverse from index 1, then from index 0, then index 1, then index 2, and finally the index 3. So my element is stored at the index 3. So in that case, how many passes? 1, 2, 3, and 4. So there are 4 passes. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 10 को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, 20 को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, 30 को ट्रैवर्स करना होगा, एंड फाइनली हम क्या करेंगे? इंडेक्स थर्ड पे आएंगे और इस एलिमेंट को हम क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे या सर्च कर पाएंगे. सो इस केस में ये नॉर्मल, अगर मैं सपोज इसको मैं लीनियर सर्च कंसीडर करता हूं, तो इसके लिए मुझे ट्रैवर्सल के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट हुई बिग ओ ऑफ एन. बट हैशिंग क्या कहता है कि ये जो बिग ओ ऑफ एन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा? रिमूव कर दूंगा, और मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ 1. अब ये कैसे होगा, इसको आगे मैं बिल्कुल आप लोगों को समझा पाऊंगा. सो द मेन कोर आइडिया इसका ये है कि मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट इस एलिमेंट को क्या कर पाऊंगा? एक्सेस कर पाऊंगा इन बिग ओ ऑफ 1 टाइम में. ठीक है, चलो. तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं कि कैसे इसको हम लोग कर पाएंगे. तो सपोज मेरे पास क्या है, हैशिंग के अंदर सपोज आई हैव सम कॉन्सेप्ट. इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे की, या फिर हैश फंक्शन, थर्ड hash table. There are 3 terms used into the hash table. So key is basically a value to search any kind of records.
Key, it can be a student ID, it can be student's roll number, it can be any particular elements that we can perform with the help of key into an array. So key basically a value. And what is hash function? Key basically a value. And what is hash function? Hash function, it may be a function that provide to solve the issue of array using the हैश फंक्शन. सपोज ये मेरे एरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, इस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है? हैश फंक्शन. और ये हैश फंक्शन सपोज के हो सकता है के मॉड एन हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है फोल्डिंग एक मेथड होता है, फोल्डिंग मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड होता है मिड स्क्वायर मेथड या फंक्शन. With the help of these functions, we can easily identify the exact position of my key into an array. And hash table, generally it is a table where all kinds of records will be stored. So basically it is a table where we can insert, where we can perform deletion, where we can perform searching of any kind of key. So now the basic concept of, now I am giving such kind of an example. Suppose I have a key and 10, 25, 42, 56, 73. So there are 5 keys I have, and I will perform hash function. I will perform hash function. And hash function, the first terminology k-mod. Mod is just generally a modulus, k mod n. Suppose I have a keys and I will apply the formula of k mod 10. And generally 10 means what? It is an index of an array. Yeah, it is a size of an array. It means I will store only up to the 10 elements. So basically I am drawing an simple table, and this table is index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, index 6, index 7, index 8, and index 9. So up to we can store the 0 to 9 elements. 10 is the size of the hash table. Got it? So first of all, I will find the hash, the mod of 10. 10 modulus 10 is equal to 0, only the remainder value. So remainder value, this is the index, this is showing the index. So this index is particularly showing the index 0. So we can store the element in the 10. The index means जो भी हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर वैल्यू आता है, वो रिमाइंडर वैल्यू क्या बन जाता है? इंडेक्स बन जाता है. और वो इंडेक्स पर हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली की को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. इसी तरीके से सिमिलरली मेरे पास क्या है? 25 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 5. सो फिफ्थ इंडेक्स पर हम क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं 25. सिमिलरली 42 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 2. तो हम 2 को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 42 स्टोर करा सकते हैं. इसी तरीके से मेरे पास क्या है? 56 मॉड 10 इज इक्वल टू 6. सिंपली हम क्या कर सकते हैं? सिक्स्थ इंडेक्स पर हम 56 को स्टोर करा सकते हैं. सिमिलरली 73 मॉड 10, इट मीन्स कि थर्ड इंडेक्स पर हम क्या कर सकते हैं? अपनी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं. तो थर्ड पे क्या आ जाएगा? 73. सो दिस इज द वे हाउ टू परफॉर्म हैशिंग इनटू द डेटाबेस. नाउ simply my question is, I want to search this particular key. This is my searching key. Just a moment. I want to search this element from the database. In that case, I will go through this function. Key 25 mod 10
एन इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कि फिफ्थ इंडेक्स पर ये मेरा एलिमेंट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो बिग ओ ऑफ 1, ये कम्प्लेक्सिटी में हमने क्या किया, यानी सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और मैंने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को, एरे के एलिमेंट्स को सर्च कर दिया। इसी तरीके से सिमिलरली कोई भी एलिमेंट, सपोज ये इस एलिमेंट को आप क्या करना चाह रहे हैं, सिक्स्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 20 आप डायरेक्ट सिक्स इंडेक्स पे जाएंगे और ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ 1 में आपको सर्च हो जाएगी। ठीक है, तो अब सपोज मेरे पास एक अनदर एलिमेंट है जिसका नाम है, सपोज मेरे पास एक 53 नाम का अनदर वैल्यू है, की है। अब इस की को सिंपली हम क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस टेबल में। इस टेबल में सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन हम क्या करेंगे, 53 मॉड 10 इक्वल टू 3, इट मीन्स कि थर्ड इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे और ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे लेक्चर में, आगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक मैंने मेथड लिखा, फोल्डिंग मेथड। क्या लिखा, फोल्डिंग मेथड। जनरली व्हाट इज फोल्डिंग मेथड, फोल्डिंग मेथड में हम करते क्या है कि सपोज मेरे पास जो एरे है 0 to 90999, ये मेरे पास क्या है, एरे का इंडेक्स है। इट मीन्स हम कितने वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, 1000 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ द क्या हो गया, एरे हो गया। तो हाउ टू परफॉर्म दिस एंड हाउ टू स्टोर दिस इनटू द एरे। सो हम क्या करेंगे, फोल्डिंग में क्या करेंगे, इसको मिड पार्ट से सिंपली फोल्ड कर देंगे, 4 5 6, एंड दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 7 एंड 5। सो फिफ्थ यानी 5 7 9th इंडेक्स पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो दिस इज द फोल्डिंग मेथड। नाउ अनदर इज मिड स्क्वायर मेथड। सो मिड स्क्वायर मेथड ये कह रहा है कि अगर सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 1 2 3 और इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, स्टोर कराना है डेटाबेस में, तो मिड वाली जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, यानी 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4। अगर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फोर्थ इंडेक्स पर जाएंगे और इस वैल्यू को क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। तो मिड स्क्वायर का मतलब जनरली ये है। ठीक है, चलो अब मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट जो है 53, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगेन थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कोलिजन अकर हो रहा है। इस केस में सिंपली क्या हो रहा है, कोलिजन अकर आ रहा है, अकर हो रहा है। सो कोलिजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हाउ टू रिमूव द कोलिजन्स इनटू द हेल्प ऑफ हैशिंग। सो इस कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल्ड में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, विल कंप्लीट डिटेल के साथ। और आप लोग जितने भी सपोज मेरे स्टूडेंट्स हैं जेआरएफ के या फिर एसआरएफ के जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, हैशिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड एवरी ईयर ये कंसेप्ट हर साल 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। तो ये इस कंसेप्ट को आप लोग बिल्कुल कॉन्शियसली, बिल्कुल सिंसियरली इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत ही ईजी है। one of the easiest topic of the data structure and one of the most important topic of the data structure. So hashing को skip नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ना है। चलो, till then keep learning. That's all. Thank you.